Namaste everyone. Welcome to today's session. Let us begin with a prayer. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro Bhavimi samskritam vacha dhyayami samskritam hृदा kurve sevanchakayena vande samskritamataram yo naras samskritavvyomni hyalayam ramate muda samskritim chaiva samskaram vindate natra samshayah. I welcome one and all to today's session, that is Sri Ramcharitmanas Anubhuti, which is in Hindi explanation. This session is going to start from today, that is Monday. So it is scheduled for Monday to Thursday, 6 a.m. to 7 a.m. So the number of classes, like it is going to be for 27 sessions. This course is going to handle by 2 teachers. So let us introduce our teachers. So this is Srimati Uma Sharma ji. Uma Sharma ji, she is a national award-winning teacher and is an educator with 40 plus years of experience. And she has played key roles at institutions like CCRT, Bharatiya Shiksha Board, CBSE and NCERT. So she is currently working with NCERT as a CAG, IKS team member, has taught the highly popular course on Sundarakanda from Sri Ramcharitmanas and Sri Hanuman Chalisa courses in our Vyoma already. In this course, we have one more co-teacher, Srimati Sunaina ji, Sunaina Rao Chaudhary. Sunaina ji is a versatile educator who has worked with young adults and preschool students. She holds an MPhil degree in nutrition. Her passion for languages and culture has enabled her to work across continents and teach various cohorts. She has taught the Chinmaya Mission Balvihar curriculum in Sydney, and her chanting and reading journey with Sanskrit started through the Srimad Bhagavad Gita at the Gurukul in 2010. So I welcome you both to this course, Bhagini, Sunaina ji and Uma Sharma ji. Let us just start with like how to join the session. So let me share my screen to know how you have to start and how to access the content. So when you start your, when you go to www.sanskritfrom.org, when you logged in, you will be taken to this dashboard. It is My Learning and you are clicking on My Learning. It will be taken to this dashboard. So here you will have, when you access the course, it will come here, right? So Sri Ramcharitmanas Anubhuti, if you click on this, the content page, this is called content page, where you will get the recordings, video, audio, and the PDF or PPT used in class. So if you want to come back, you can come back here, like click on go to dashboard. Every day it is better to join from this dashboard. So here you can able to see the course. So it will be like when teachers start the class, it is going to be in blue, like in join now button, you can able to see here. If it is like this, I mean, it is not started, it is not yet highlighted. So when you highlight, when it is highlighted, it is better to click and join the class. It is not showing, then please click on the refresh button and you can see the join now button. You can join from here. So this is the basic joining the class as well as accessing the content. So one more basic guidelines is webinar guidelines. As you know, it is, you'll be having raise hand option here. So whenever the question and answer session will be there, you can raise your hand and you can ask your queries, and Q&A will be there where you can type your questions so the teacher see and answer your queries, and mute and unmute option, as you know. And for better audio option, facility, you can use your headphones too. So you can join from any PC, Android or iOS device. So one more exciting news that we have started our mobile app. So it is a beta version. So it is very easy. Like same you will use in web, right? Like that only you can use from mobile.
So it is very easy to take the classes from there, accessing the contents, track your progress, taking the assessment, everything you can do through mobile. So please download this. I'll be sharing the link soon. So this is the QR code. If you want, you can scan it now. So this is for Android users. This is for Apple users. So any doubts, any clarification, if you want, you can mail us sanskritfromhome@vyomalabs.in, and also you can call us for 94808-65623. So one more request is, whenever you start or join the class, please close all other apps, unused apps, so that you will get the better internet quality and you can join the class easily. So these are all the basic guidelines. Thank you so much for joining, and I'll request everybody to enjoy the session, and Shri Ramcharitmanas ki Anubhuti ka Anand le. Namaskar. So over to you, Umaji and Sunaina ji. You can continue. I welcome one and all once again. Namaste. नमस्कार. Welcome. जय श्री राम. जय श्री राम उमा जी. नमस्कार, प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन. पहला दिन है, बालकांड प्रारंभ करेंगे. थोड़ा सा कार्यक्रम का परिचय होगा और कथा में है भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी संवाद, सती कथा, पार्वती जन्म, नारद भविष्यवाणी और कार्यक्रम का परिचय. सौभाग्य है हमारा कि रामकथा के माध्यम से व्योमा ने जो मंच पर बुलाया है, आपके सानिध्य में ईश्वर के गुणों की चर्चा, चिंतन, मनन, गायन, पठन, श्रवण. थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. सारे प्रतिभागियों को प्रणाम, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन. आशा करते हैं कि श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम जो है ना, ये वास्तव में आपके लिए एक अनुभूति होगा, एक आनंद होगा, एक रस की अनुभूति होगी, दिव्य अलौकिक रस की अनुभूति होगी. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम क्यों रखा गया, क्या है इसका अभिप्राय, कि हम बाह्य संसार के सारी चीजों में आनंद ढूंढते रहते हैं. कोई कहीं जाने का, कहीं खाने का, किसी से मिलने का, कहीं पहुंचने का, मतलब कोई पार्टीज हैं, कुछ है. तो जो ईश्वर की कथा में, ईश्वर की चर्चाओं में जो आनंद है ना, तो लौकिक से अलौकिक और दिव्य आनंद में हम कैसे पहुंचे, उसको, उस अनुभूति को हम जान सकें. कि जब हम भक्ति में कोई हम फिल्म देखते हैं, हम रोते हैं उसमें, तब भी हम कहते हैं पिक्चर बड़ी अच्छी थी. तो ये ईश्वर का रस भी ऐसे है कि जिसे हम हंसेंगे, रोएंगे, अद्भुत भाव में लीन होंगे. तो उस रस में डूबना, उस भक्ति में जिन जिन रामचरितमानस के जिन जिन पात्रों के हम सामने आएंगे, तो हमें एक अलग ही अनुभव होगा. हम उसके ऐसा साक्षात्कार उनका कर लेंगे कि हम उनके भाव को समझ पाए. यही रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य है. क्या है ये? इसमें है राम कथा है, भक्ति रस है, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो महाकाव्य लिखा है, उसका आनंद है, और ये भक्ति काव्य है. तो इसमें पग पग पे भक्ति का अनुभव होगा. रावण जैसे ने शत्रुता पूर्वक जो भक्ति करी, तो वो भी उसने जान के कि मुझे ईश्वर को कैसे पाना है, तो वो एक मार्ग जो है भक्ति का हमें इसमें नजर आएगा. और शब्द, रस, छंद का सुंदर भावपूर्ण समायोजन जो तुलसीदास जी ने किया है, अवधी भाषा के पदों को गा गा के, सुन सुन के ऐसे लगेगा कि हमारी मातृभाषा ही ये है. क्योंकि राम जी भी उसमें बोल रहे हैं, सीता जी भी उसमें बोल रही हैं, जनक जी भी अवधी भाषा में बात कर रहे हैं. तो बहुत सुंदर होगा. सुर लय तालबद्धता, रामचरितमानस का एक एक पद ऐसे सुर तालबद्ध है. ये इसमें दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा,
और इनमें बद्ध, ये जो है श्लोकों में बद्ध है, तो एक एक लय ताल से हम भटक ही नहीं सकते हैं, इतना सुंदर लिखा गया है। शब्द समायोजन ऐसा है कि वो तालबद्धता समझ में आती है। और कथा का पठन, श्रवण, वाचन और भाव गायन होगा। कहीं पर हम कथा पढ़ेंगे, कहीं आप सुन रहे होंगे, कहीं हम मिलके वाचन करेंगे, कहीं हम भाव गायन करेंगे। और जहां भी गायन होगा तो सुनैना जी हमारे साथ में हैं सारे ऑडियोज और गायन के लिए। थैंक यू सुनैना जी फॉर बीइंग हियर। और इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो गायन वाले पद हैं उनके ऊपर मिलके हम लोगों ने जो काम किया है और जो कथा का चयन किया है। तो जब जब शब्द स्क्रीन पर होंगे तो आप लोग भी उसके साथ में म्यूट करके पूरे ऊंचे स्वर में गाइए, तभी आपको इसका गायन का आनंद आएगा और भाव में डूब पाएंगे। तो ये हमें आज से, अभी से थोड़ी देर में हम जब कथा प्रवेश करते हैं तो पता चलेगा क्या है इस कार्यक्रम के लिए पूर्व योग्यता। हमें क्या चाहिए? सिंपल बोलचाल की हिंदी आनी चाहिए। और हिंदी भी नहीं आती तो कोई सी भी भारतीय भाषा आती है तो हिंदी का तो उसका सरलतम रूप है, तो बोलचाल की हिंदी होगी। और लेकिन जिनको राम कथाएं प्रेरणा देती है ना, राम कथा में जिसको रस आता है, जिसको राम कथा की जिज्ञासा है, भक्ति काव्य की पिपासा है, प्यास है कि हम ईश्वर के गुणों को जाने जाने, कथाओं की चर्चा करें, और भक्ति की शक्ति में जिसको आस्था और विश्वास है ना। और जिनके हृदय में राम जी ऐसे ही निवास करते हैं जैसे हनुमान जी के हृदय में बैठे रहते हैं ना, तो ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो अधिकारी कौन है इसका? राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको राम कथा प्रेमियों के साथ में बात करना, सुनना है ना, तो राम जी के गुणों की चर्चा, सत्संगति जिनको अच्छी लगती है, वही वास्तव में राम कथा के अधिकारी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हम आपका अभिनंदन करते हैं हृदय से। इस कार्यक्रम का प्रयोजन क्या है, क्यों क्यों ये कार्यक्रम बनाया गया, और अधिगम क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, हम क्या इन 28 दिन में से गुजर के हम क्या उपलब्धि होगी कि हम राम रसायन, राम कथा के रसायन का आस्वादन कर पाएंगे, है ना। सौंदर्य बोध, कहीं पर तुलसी के शब्दों में चमत्कार है, ध्वनियां ऐसी हैं, कहीं कहीं ऐसे भाव चयन है, कहीं भाव प्रबल है, कहीं शब्द प्रबल है। तो ये काव्य सौंदर्य जो है ना, दोहा छंद चौपाई को गा गा के उस काव्य सौंदर्य में हम अनुभूति कर पाएंगे। और भाषा कौशल तो है ही। जब भी हम किसी भी भाषा की बात करते हैं, संसार की किसी भाषा की बात करते हैं, तो उसमें हमें कुशलता आती ही है। हम एक भाषा पर अच्छे से काम करने लग जाते हैं तो वो उसके गुण सारी भाषाओं में जितनी भी हम जानते हैं उसमें प्रबल होके दिखाई देने लग जाते हैं। तो भाषा कौशल पर बराबर काम होगा। ये तो इनडायरेक्ट है। आदर्शों और मूल्यों पर चर्चा होगी। राम जी का जो चरित्र है वो क्या है राम जी? राम जी हमारे क्या दशरथ नंदन अयोध्यापति सीतापति राम है, या उससे आगे भी कुछ है? एक एक हम उनको एक उनके राम जन्म के रूप में अगर हम देखते हैं तो एक अनुकरणीय देव, आदर्श पुत्र, एक भाई, एक पति, एक शासक, एक वनवासी, एक सहायक, एक मित्र, हम कैसे कैसे उनको देखते हैं। तो रामचरितमानस, क्या रामचरित कहीं से भी, वाल्मीकि रामायण के बाद किसी भी रामायण से, वाल्मीकि रामायण तो समुद्र है, कहीं से भी राम जी के गुणों पर चर्चा करेंगे तो हम आदर्शों और मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो वो सबको हमेशा से संसार भर को प्रेरणा देते रहे हैं। तो ये आदर्शों और मूल्यों की चर्चा जो है आज के संदर्भ में हम राम जी को कैसे जोड़ रहे हैं अपने साथ में, कैसे हम उनके किन गुणों को अपने ऊपर लागू करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो ये इन पे चर्चा होगी। ये प्रतिभागियों का ये भाग है कि उन्होंने
हर दिन हम सोचेंगे कि हमें आज क्या मिला, हमने आज क्या सीखा, है ना। तो भक्ति 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 काव्य है, भक्त कवि ने लिखा है, और भक्ति को हमने इस रूप में जानना है। भक्ति सिर्फ ये नहीं है कि जोत जलाई भजन गाए और भक्ति हो गई। भक्ति एक साधन है, एक तरीका है, एक व्हीकल है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। भक्ति साधन है, भक्ति साधना है, और भक्ति ही साध्य है। तो ये हमें रामचरितमानस की रसानुभूति में प्राप्त होगा कि भक्ति इतना सरल, सुंदर, सुगम मार्ग है कि जिसमें चलने में कोई दुविधा ही नहीं है। सिर्फ अपना जो हाथ में गरम ग्लास पकड़ा है ना, वो राम जी को पकड़ा देना है, सरेंडर कर देना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये भक्ति के ऊपर जो है पूरा फोकस है कि साधन साधना साध्य जो है हमें रामचरितमानस से मिलेगा। और जो हमारी मन में ऑलरेडी भक्ति है, हम भक्ति भाव रखते हैं, वो सहयोगियों के साथ में, सहपाठियों के साथ में चर्चा से हमारी और पुष्ट होगी ऐसे लग रहा है, और हम आध्यात्मिक प्रगति पर अग्रसर होंगे। ये पूरा विश्वास है कि ये जरूर होने वाला है, दिन पर दिन होने वाला है। हम समृद्ध होने वाले हैं आध्यात्मिक प्रगति में। विषय वस्तु क्या है कि पूरे रामचरितमानस में से चयनित मूल पाठ ले लिए हैं, कुछ चौपाइयां लिए हैं, छंद लिए हैं, दोहे लिए हैं, और कथा के अनुसार बहुत ही संक्षिप्त लिया है, क्योंकि अगर हम सारा करें तो ये बहुत विशाल प्रोग्राम, बहुत दिन चाहिए। तो हर कथा प्रसंगों को उठाया गया है, क्योंकि कथा जो इतनी मनोरंजक, इतनी सुंदर, इतनी रसीली कथाएं हैं कि इनकी कुछ 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 चौपाइयां पढ़ते हुए हमें पूरी राम कथा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे हम। तो फिर आगे हम पूरी रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो अभी चयनित मूल पाठ लिया है और कथाएं ली हैं, और ग्रंथकार की बात होती रहेगी बीच में भी, और ग्रंथ की महिमा क्या है, पाठ का फलश्रुति क्या है। हर हर रामचरितमानस का हर दोहा चौपाई मंत्र है, जहां से हमें अपने जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है। जिस पेज को खोलेंगे ना, वही हमको अपने लिए समाधान मिल जाएंगे, इतना सुंदर है। तो लेकिन हर कांड के अंत में भी पूरे कांड की फलश्रुति भी है। तो और बीच बीच में दोहे चौपाई तो मंत्र है, मंत्रवत है। उनको जब बार बार हम करते हैं तो वो मंत्र ही बन जाता है। तो ऐसे हैं। तो वक्ता श्रोता अधिकारी की बात करेंगे कि ये संवाद मूलक काव्य है। तो वक्ता श्रोता अधिकारी हमने कहा, वक्ता श्रोता इसकी कौन है, कौन किसको कथा कह रहा है, इस पे हम अभी बात करेंगे। और सिद्ध संपुट मंत्र की बात हो गई कि राम कथा की चौपाइयां हमारे लिए मंत्र हैं, हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए आदर्श हैं, और हमारा हर समय मार्ग प्रदर्शन करते हैं। हर पात्र हमको कुछ दे के जा रहा है। ऐसा नहीं है कि राम जी ने जो बोला वही मंत्र हो गया। जो जिस जिस तरीके से उसने अपनी यात्रा करी, वो उसके भी जो चौपाइयां आती हैं, बड़े सुंदर लोग तो मुहावरे, लोकोक्तियों की तरह से इसको प्रयोग करते हैं। इतना जनमानस में प्रचलित है ये महाकाव्य। तो दोहा चौपाई, छंद का परिचय और भाव गायन होगा, चिंतन मनन होगा, कौन है राम, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये शुरू ही इससे होता है कि राम कौन है। हर कोई यही पूछते जा रहा है। और क्या है, कौन है, क्या राम तत्व क्या है, राम नाम की क्या महिमा है ना। तो राम से बड़ा राम का नाम, ये भी बात हो जाती है। तो ये सब हमें कथाओं के बीच बीच में हर पात्र से ये मिलेगा। तो कौन है राम, ये चिंतन बराबर बना रहेगा, और उत्तर कांड में जाके सारे समाधान जो है मिल जाएंगे हमको आगे चलते चलते। तो इसका रूपाकार क्या रहेगा इस कार्यक्रम का। हर दिन जो है मंगलाचरण से शुरुआत होगी। आज की कथाएं क्या है, हम थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। हर कांड से चयनित पदों का श्रवण गायन होगा। एक सेक्शन तो ये है जो हमारी तरफ से होगा। दूसरा सेक्शन है शंका समाधान, जिज्ञासा। आपके जो प्रश्न है, आपकी जो जिज्ञासा है,
सत्र के अंत में कुछ समय उसके लिए रखा जाएगा और उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं और पीयर लर्निंग, और एक दूसरे से हमें समाधान मिलेंगे। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, प्लीज आपकी तरह से ही राम चर्चा में आनंद लेने वाली श्रोता हूँ। तो हमें प्रश्न आपस में ही सत्संगति में ही मिल जाएंगे सारे समाधान। तो प्रतिभागी प्रश्न, आप कुछ अपने प्रश्न तैयार भी कर सकते हैं जो अगले दिन पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं या प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। तो आज समय नहीं होगा तो उसका उत्तर कल मिल जाएगा। और चिंतन मनन होगा, मूल्य आदर्शों पर बात होगी, और एक सेक्शन है अंतः कथाएं और ज्ञान का विस्तार। इसके लिए पूरी रामकथा में से जाते जाते कुछ अंतः कथाएं कि जो रामचरितमानस में इसमें नहीं है, हो सकता है इससे विशाल कोई ग्रंथ हो उसमें हो। और ऐसा भी है कि जब हम बचपन में छोटे में पढ़ते थे तो वो रामचरितमानस उसका वॉल्यूम बड़ा था और उसमें बहुत सारी कथाएं ऐसी थी जो अब के रामचरितमानस जो वॉल्यूम जो चल रहा है उसमें नहीं है। तो कुछ अंतः कथाएं, कुछ कुछ ऐसी जिज्ञासाओं के लिए प्रश्नों के बीज जो है वो दिए जाएंगे। तो ज्ञान का विस्तार के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे जो सीधा राम कथा से संबंधित नहीं है पर हमारे जीवन से संबंधित जरूर है। तो वो उनके समाधान आप ढूंढते रहेंगे, वो कभी किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम उनको जानेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स के रूप में बाद में हमने दिया है इसमें, तो ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरित मानस है ना, ये भक्ति काव्य है, भक्ति ग्रंथ है। और इसका वॉल्यूम जो है वो कुल इसमें 4608 चौपाई है, 27 श्लोक हैं, 1174 1174 दोहे हैं, और 84 सोरठा हैं, और 196 छंद हैं। ये जो है रामचरित मानस पूरा है, जो गीता प्रेस गोरखपुर का वॉल्यूम आजकल सब लोग पढ़ते हैं और जो पारायण पाठ होता है उसमें पढ़ा जाते हैं। तो अगर इसका नॉन स्टॉप पारायण करेंगे, क्या क्या बोलते हैं, कैसा पाठ, अखंड पाठ करेंगे, तो 24-25 से लेकर 30 घंटे में हो जाता है। तो कोई लोग इसको सप्ताह पारायण करते हैं, मास पारायण करते हैं, तो जैसे मन हो, चाहे एक पेज रोज पढ़िए, जैसे चले वैसे चला सकते हैं। तो भक्ति काव्य है, अवधी भाषा में लिखा है। अवधी जो है एक बोली है, उत्तर भारत के अवध जो एरिया, यूपी बिहार ऐसे काफी बड़े क्षेत्र में जो है उसको अवध कहते हैं। तो वहाँ जो बोलचाल की भाषा अवधी है। तो तुलसीदास जी ने संस्कृत के वाल्मीकि रामायण से जेम्स निकाल के उस कथा, सुंदर कथा को लेकर अपने लोगों की बोलचाल की भाषा में ये काव्य रचा। और जब इन्होंने रचा तो इनका बहुत भारी विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि जो है बोलते थे कि संस्कृत जो है देवों की भाषा है, तो इसको लोक भाषा में दूषित कर रहे हैं भगवान के नाम को। तो उन्होंने तो इनके झोपड़े में आग भी लगा दी थी। तो लेकिन ग्रंथ इन्होंने अपना कहीं हस्तलिपि जो पांडुलिपि है कहीं रख दी थी, तो वो बच गया। तो इस तरीके से लेकिन ये क्योंकि जन जन के मन में सीधा उतर गया, अवधि छोड़ के पूरा किसी भी भाषा के लोग जो हैं इसको पढ़ते हैं और पूरा आनंद है, रस है, भाव है। तो बहुत सुंदर है। इसमें डूबेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। जो है जैसे ही गाना शुरू करेंगे तो आपको भी इसका और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे प्रतिभागी जो हैं ऑलरेडी जो यहाँ हैं वो कहीं ना कहीं रामचरितमानस उनके हृदय में है, उससे जुड़े हुए हैं, अवधि को जानते हैं। लेकिन हम कथाओं और अर्थ को ले लेके चलेंगे और सेलेक्टेड पोर्शन को गाएंगे, तो फिर देखते हैं कि कैसा बनता है। ग्रंथ के महात्म के बारे में तो सुनैना जी।
आप बताएंगे। ये इसके बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि तुलसी की राम कथा जग में तो लोगों के लिए भव सागर को तरने के लिए पुल के जैसी हो गई है। तो जी बताएंगे हम सुन। हाँ जी। ये तो हम गाकर ही सुना देते हैं। हाँ जी। तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारी ने तारन को तुलसी। तुलसी भव सागर तारन को, बड़ी के मन गांठ गई तुलसी। तुलसी गठरी गई पापन की, तुलसी गई और जनता हुलसी। तुलसी जनता हुलसी वसुधा, तुलसी तुलसी जन के तुलसी। रामचरितमानस जो है संवाद मूलक काव्य है। इसके वक्ता श्रोता कौन है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 4 वक्ता श्रोता बताए हैं कि भगवान शिव पार्वती जी को एक कथा सुना रहे हैं, और उसी के पैरेलल कथा चलती है, काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। तो एक और श्रोता वक्ता की जोड़ी है, ऋषि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और और तुलसीदास तो हम सबको सुना ही रहे हैं, है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं। हाँ जी। जो आप ये सारे बता रही हैं ना, संवाद हुए, कौन किसको सुना रहा है, तो एक हम्म। बार माघ मास में कुछ होता नहीं, सूर्य मकर राशि हाँ 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 है, क्या होता है वो सुनाएंगे, किसने किससे क्या कहा? हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ। रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करते हैं हम। अ, यहाँ रामचरितमानस जो शुरू होता है वो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, और फिर उसके बाद अगली जोड़ी आती है कि भगवान शिव ने कैसे पार्वती जी को कब सुनाई। फिर काकभुशुंडी जी आएंगे। तो तुलसीदास जी ने तो पहले ही पद से प्रारंभ ही किया है मामला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में राम और राम कथा, ये आपके लिए प्रश्न है कि हम अपने हमारा जीवन कैसे, हमारा ताना बाना जो है ना पूरा वो राममय है ना। जो कहते हैं ना कि देखो, जप में राम, तप में राम, मन में राम, मुख में राम, सुख में राम, दुख में राम, पल पल निज दिन राम ही राम। नाम राममय काम राममय, भली करेंगे राम जी। राम राम मिलते ही बोलो अंत मिलेंगे राम जी। तो जन्म से मृत्यु तक राम ही राम है हमारे जीवन में जुड़े हुए। हम अपनी संस्कृति में सारी कलाओं में हम अपने गीत को, अपने संगीत को, अपने नृत्य को, अपने गायन को, अपने वादन को, अपनी आर्किटेक्चरल हेरिटेज को, अपने मंदिरों को, अपनी मूर्तियों को, जहां आप मुझे वो स्थान बताइए कि जहां राम नहीं है ना। तो हम इस पे बीच बीच में ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन पे चर्चा करते रहेंगे कि हमारी संस्कृति के ताने बाने में हम राम जी को कैसे देखते हैं कि ईश्वर का पर्याय है राम। जो दशरथ नंदन है, तो क्या वो ईश्वर का पर्याय है? क्या वो ईश्वर है? कौन है राम? ये प्रश्न है। ये सब जगह का, ये जो जितने चारों वक्ता श्रोता आए हैं ना, हमारे मन में तो बड़ी दुविधा है। हम तो बिल्कुल ही बोले कि कहीं हनुमान जी की पूजा करी तो गणेश जी नाराज ना हो जाए। हम तो इतने कंफ्यूज हैं कि राम जी की पूजा करी तो भगवान कृष्ण नाराज ना हो जाए, है ना। लेकिन बड़े 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 आगे देखेंगे कि जितनी जोड़ियों के नाम लिए ना, वहां सब यही है कि राम कौन है। समझ ही नहीं आ रहा कि राम कौन है, दशरथ नंदन है या वो ईश्वर है। ईश्वर है तो वो रो क्यों रहा है ना। तो एक तो ये बात होगी, ईश्वर का पर्याय है राम। हमको इसका उत्तर मिलते जा रहा है कि नहीं मिलते जा रहा, हम रोज ये टटोलेंगे इस बात को। रमते कणे कणे इति रामः, पता लगाएंगे कि क्या जो हमारे जीवन के कण कण में, इस संसार के जर्रे जर्रे में जो है, क्या वो राम है। रमनते सर्वत्र इति रामा, हर जगह जो रमण करता है वो राम है ना। तो राम से बड़ा राम का नाम, जब राम का नाम वो काम कर रहा है,
है, तो राम क्या है, क्या होंगे राम भैया, जिसका नाम लेके, है ना, जिसके नाम की क्या बोलते हैं कि रोते जागते जैसे मर्जी राम का नाम लो, चाहे क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा उग जाएगा उल्टा सीधा बीज। मतलब मेरे राम जी का नाम तुम रो के, हंस के, खींच के, गुस्से में, है ना, जैसे मर्जी लो, धरती में बीज डालते हैं तो वो उगी जाता है, तो राम नाम भी फल दे ही जाता है ना। तो जैसे हाँ मैम। हाँ जी, हाँ मैम, यहाँ तो ये भी बताना पड़ेगा कि अगर उल्टा भी बोला जाए नाम तो वो सीधा ही हो जाता है, मरा 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 राम, हो गया ना राम, वाल्मीकि जी ने तो ऐसे ही किया था, है ना। बनते ही नहीं, डाकू दस्यु परिणत ऋषि देखिए, और जब उनको दीक्षा मिली तो उनके मुंह से तो राम ही ना निकले, तो बोले तो मरा मरा ही बोलना शुरू कर दे, राम 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 राम। तो है ना, तो क्या है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि, है ना। तो ये राम से बड़ा राम का नाम कैसे, ये राम नाम ले लेके कौन तर गया, हम इसकी भी कथाएं आएंगी। और राम रसायन जो है वो नाम रसायन ही राम रसायन है ना। तो जो हम ये चर्चाएं कर रहे हैं, ये यही तो नाम रसायन है, यही राम रसायन है। और जब नाम 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 राम 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 करने लग जाते हैं, नाम रसायन बन गया, है ना। तो हम प्रारंभ करते हैं कथा। एक सुखासन ले लीजिए, पूरा ध्यान केंद्रित करिए अपना उस परम सत्ता परमेश्वर राम की तरफ, 3 बार प्रणव उच्चारण करके, फिर ओके, चलिए 3 बार ओम बोलते हैं। ओ ओ ओ नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपितवाम भागम्, पाणौ महासायकचारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीले कमल के समान श्यामल और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके बाएं भाग में विराजमान है, और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सुनैना जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करें कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पहला सोपान है बालकांड। बालकांड में जो है, कथा में जाएंगे, सती कथा, शिव पार्वती कथा, श्री राम जन्म कारण कथा प्रसंग लेंगे, श्री राम जन्म और बाल्यकाल होगा, श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र प्रसंग चलेगा, और जनकपुरी प्रसंग, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, परशुराम जी प्रसंग, विवाह प्रसंग। तो जन्म से लेकर विवाह तक का राम जी का बालकांड में आता है। सबसे विशाल जो है कलेवर का बालकांड ही है। बालकांड में 7 श्लोक हैं, 1484 दोहे हैं, चौपाई है, 360 दोहे हैं, 34 सोरठा है, और 61 छंद है। तो 5 सत्रों में हमारा ये बालकांड चलने वाला है, 5 दिन की कथाओं में। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते,
श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप शंकर पार्वती जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। कौन है राम? सवाल यही है, इसी से कथा प्रारंभ होती है। कौन है राम? अब आप सुनाई दीजिए, इतनी देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी। तो पहला हमारा टाइटल है कि राम कवन प्रभु पूछे तो ही। भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी का संवाद है, जहां से रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होती है। सुनैना जी बताइए, तो फिर मैं स्टोरी बताती हूँ। जी जी जी, अभी सुनाती हूँ। राम कवन प्रभु पूछौ तो ही। भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी संवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक और, गुरु सन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अस विचार प्रगटौ निज मोह, रघुनाथ करि जन पर छोह। राम कवन प्रभु पूछौ तोई, कहे बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अबर को, जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुमरी मैं जानी। चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। तात सुनऊ सादर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जी, तो पहला भाग बालकांड है। तुलसीदास जी रामचरितमानस प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भारद्वाज मुनि जो है ना, प्रयाग में बसते हैं। उनका राम जी के चरणों में अत्यंत स्नेह है। देखिए, राम जी ने भरद्वाज मुनि के आश्रम गए थे, है ना। तो समकालीन, ओके। तो वहां माघ मास में जो है मेला लगता है। महीने भर सारे ऋषि मुनि आते रहते हैं, ज्ञान विज्ञान चर्चा होती है, सत्संग होता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, है ना, इससे युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। तो जो है 1 महीने के वास के बाद सारे लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो एक बारी याज्ञवल्क्य जी भी वहां आए। तो भारद्वाज जी वहां रहते हैं, आश्रम है उनका। तो उन्होंने तो उनका बड़ा आग्रह करके रोक लिया उनको कि आप कुछ दिन रहिए मेरे पास। तो रुके। तो उनके आग्रह को टाल नहीं सके, उनको प्रणाम किया, आसन दिया, बड़ा कंफर्ट जोन में ले आए और उनको बोले कि बड़े संकोच के साथ में मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, और लेकिन मुझे बड़ी लज्जा लग रही है ना, कि मैं जो है मेरे मन में बड़ा भारी संशय है। आपको तो वेद तत्व बिल्कुल ज्ञात है, तो मुझे लज्जा लग रही है, लेकिन बड़ा नहीं कहूं तो बड़ा भारी मेरा ही नुकसान है, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाएंगे तो ज्ञान कैसे होगा। तो इसलिए जो है, होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु से कुछ छुपाने से तुम्हारे ज्ञान में जो है बाधा आती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे कि मेरे मेरे मोह को देखते हुए जो है, और मुझ पर दया करते हुए, मुझे राम कवन प्रभु पूछूं, तो ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राम कौन है। कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, मुझे कृपा करके बताइए कि राम कौन है। एक तो राम अवधेश कुमार है, राजा दशरथ के बेटे हैं, है ना। उनका चरित्र तो सारी दुनिया जानती है। अरे, नारी विरह में इतना भारी दुख उठाया उन्होंने, है। और भयउ रोष रन रावण, गुस्से में रावण को मार डाला है। तो क्या वो राम है? प्रभु सोई राम की अपर कोई जाय जपत। और महेश जो है, शिव जी, उनका हर समय भजन करते रहते हैं। क्या वही राम है? क्या वो उस अवधेश नरेश का वो जाप करते हैं? कौन से राम है वो? सत्य, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, प्लीज मुझे बताइए, है ना। अरे समझ गए भारत याज्ञवल्क्य जी, अच्छा तुम राम भक्तो, मन क्रम वचन से जो है राम भक्तो, मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया है कि राम जी की चर्चा करना चाहते हैं, है ना। और ऐसा मूड दिखा रहे हैं कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, सुनिए, सादर सुनिए, मन से सुनो, मैं सुना रहा हूँ राम जी की कथा, तुमने इसीलिए मुझे रोका है, तो सुनाता हूँ। अब वो कहानी जो पहली शुरू करी उन्होंने, तो उन्होंने पूछा था कि क्या वही महेश जो है, जिनका जाप करते रहते हैं, शिव जी जिनको भजते हैं, क्या वही राम है? तो वो कथा भी उन्होंने फिर वही पकड़ ली, सती कथा। ठीक है, चलो तो सुनो। तो ठीक है। तो उन्होंने कथा प्रारंभ करते हैं कि एक बारी त्रेता युग में जो है, शिव जी है अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य ऋषि कहाँ है? दक्षिण भारत में। हाँ, दंडकारण्य के बाद जो है, राम जी जब जा रहे थे तो अगस्त्य ऋषि के पास से गए, है ना। तो दक्षिण भारत में वहां से भगवान शिव एक बार आ रहे थे, और उस समय जो है उनके साथ भवानी सती जी थी। सती सती जो है दक्ष कन्या सती, जो पार्वती जी का पहला जन्म, उससे पहला जन्म। तो वो जो आ रहे थे, तो उस समय में राम जी वनवास में थे, सीता हरण हो चुका था, बड़े विक्षिप्त अवस्था में थे। राम लक्ष्मण सीते सीते करते इधर उधर पशु पक्षियों से, वन लताओं से सीता सीता पूछते हुए, है ना, पूछते हुए जा रहे थे। तो इस तरह से उनको जब सती जी ने देखा,
तो उनके मन में बड़ा भारी मोह हो गया, बहुत संदेह हो गया कि अरे, तो जब वहां से भगवान शिव और सती जी निकल रहे हैं, तो भगवान शिव ने सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो ऐसे सच्चिदानंद करके प्रणाम किया, और जो है आगे बढ़ने को हो गए। उन्होंने कहा ये उचित समय नहीं है उनसे भेंट करने का, तो थोड़ा साइड से जाने लग गए। तो जब है पंचवटी के उस समय की बात है, बलपूर्वक रावण हर ले गया था। और चलिए, सच्चिदानंद की जय का, और दर्शन के आनंद से पुलकित हो गए, दूर से ही देख के आनंदित हो गए, और फिर आगे बढ़ने लग गए। तो सती जी ने शंकर जी की हालत देखी, तो उनके मन में संदेह हुआ, कि तर्क करने लग गई मन में कि अरे, संपूर्ण जगत के ईश्वर, चराचर लोक के स्वामी ये भगवान शंकर हैं, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे, ये एक राजकुमार जो सीते सीते करते घूम रहा है, इनको एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कह दिया, एक राजकुमार को। तो ये क्या है? इतना आंदोलित हो गया कि वो अपने संदेह को नहीं रोक सकी, पूछने को नहीं रोक सकी, अपने संदेह का स्वयं निवारण करना चाहती हैं ऐसे। तो शिव जी समझाते रहे, उनका संदेह नहीं दूर हो रहा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने, शिव जी ने क्या बोला, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहु। तो जाओ ना, खुद ही परीक्षा ले लो, जाओ, है ना। तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जब लगी तुम ऐहू मोई पाही। मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, जाओ अपने भ्रम, जाओ देख आओ, पता करे आओ, है ना। तो हे देवी, तुम्हारे मन में इतना भारी संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो, मैं यहीं बैठता हूँ, है ना। तो भगवान शिव ने अनुमान लगा लिया कि अब सती का कल्याण नहीं है, वो सचमुच परीक्षा लेने के लिए चल दी। उन्होंने कहा अच्छा आप बैठिए, मैं आती हूँ। ओके, तो चल दी। और भगवान शिव को बहुत डर हो गया कि कल्याण हो क्या हो, मतलब कैसा होगा। तो चली गई सती, बड़ी चली जा रही है राम जी की तरफ, और उन्होंने क्या, सीता का वेश बना लिया। ठीक है, वो सीता सीता कर रहे, सीता का वेश बना लेते हैं। सोच रही थी जांच कैसे लूं कैसे लूं, तो सीता के वेश में चल दी। और भगवान राम ने सती जी को आते हुए देखा, तो उन्होंने घट घट के वासी आनंद राम जी तो पहले से ही जानते ही थे, है ना। तो भगवान शिव ने उनका दर्शन पाया, तो उन्होंने भी तो उनको देख लिया ना। तो राम जी ने क्या किया, जोरी प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरई कई हेतु। पिता के साथ में अपना नाम बोला, मैं दशरथ नंदन हूँ, प्रणाम किया। और जो है फिर कहा कि अरे वृष केतु कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है, तो आप अकेली क्यों विपिन में, जंगल में अकेली क्यों जा रही हैं? अब सती का क्या हाल हुआ, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। बहुत भारी सोच हुआ मन में, सोच, खेद हो गया कि मैंने ये क्या किया, वो, है ना। भगवान शिव का कहना नहीं माना एक तो, और दूसरा सीता का वेश धारण कर लिया। बहुत लज्जित हो रही हैं, चुपचाप वापस चली गई शिव जी की ओर में। अब देखो आगे जाके क्या किया कांड उन्होंने, कि शिव जी की ओर जा रही हैं, पश्चाताप में जल रही हैं कि बेकार ही आई, और ऊपर से सीता का अज्ञान और भारी अज्ञान दिखा दिया, है ना। तो उसके बाद जब पति के पास पहुंची, तो शिव जी ने क्या कहा, कहो पूछा ही, सती। है ना, हाँ पूछा तो उन्होंने था ही कि पूछ- बताइए सती, कहिए हाँ क्या बात है, सच सच बताइए, क्या हाँ, क्या हुआ वहां, परीक्षा आपने ली, परीक्षा ली? हाँ। क्या परीक्षा परीक्षा ली। और सती ने बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस प्रणाम करके आ गई आपकी तरह से। तो ओ, झूठ इतनी बोला। लज्जा। तो देखिए कैसे परीक्षा ली, उन्होंने कहा, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। कि मुझे तो यही ठीक लगा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो इस तरह से, और जो है भगवान शिव ने सुना। हाँ, तो सती ने बोला जो आपने कहा वो असत्य नहीं हो सकता। देखिए कैसे डिप्लोमेटिक आंसर, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जो आपने कहा वो झूठ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब शिव संकल्प, भगवान शिव ने ध्यान किया और सब जान लिया। अंतर्यामी त्रिकालज्ञ सर्वेश्वर महेश ध्यान अवस्था में सती के संपूर्ण चरित्र को जान गए। तो कि इसने सीता का वेश धारण किया, तो छल करना चाहा, भगवान राम से छल करना चाहा, और मुझसे भी छल किया, मुझे भी नहीं बता रही हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रकट में कुछ नहीं कहा, मन से त्याग कर दिया सती का। तो उन्होंने कहा कि भले ही सती परम पवित्र है, लेकिन अब इस देह से उनसे भेंट नहीं हो सकती। तो इस तरह से मुझे बड़ा पाप लगेगा, है ना। तो इस ये सोचकर शिव जी ने सती के त्याग का संकल्प ले लिया, और जो है समाधि में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। अपनी करनी को याद कर करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी भारी चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो है पति से झूठ बोला। दक्ष नंदिनी बहुत दुखी थी, कष्ट इतना अधिक था कि ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि ये शरीर जल्दी से जल्दी छूट जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो उसी समय में उनके भगवान शिव की समाधि खुली। बहुत समय बीत गया समाधि में, ऐसे ही जलती रही सती, कष्ट पा रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं, प्रायश्चित करना चाहती हैं, क्या करें, है ना, समझ नहीं पा रही हैं। तो उसी समय में भगवान शिव समाधि से जागे और बड़ा उत्सव, ऊपर विमान आ जा रहे हैं। देखिए हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश की, है ना, विमानों से आवागमन हो रहा है, बड़ा रौनक मची हुई है। तो सती जी ने पूछा स्वामी से कि क्या है ये, इतनी रौनक किस लिए हो रही है, देवता इधर उधर सब आ जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने बताया कि दक्ष प्रजापति बने हैं, तुम्हारे पिता के घर में भारी उत्सव है। तो जो है अभी तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाना चाहूँ, क्योंकि वो परेशान थी, है ना, उनको तो थोड़ा ब्रेक चाहिए कि कुछ चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भी, अपने पति के यहाँ उत्सव है, सॉरी मेरे पिता के घर में उत्सव है, तो मैं भी जाना चाहूंगी। भगवान, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। कह रही है कि मुझे भी आज्ञा दे दीजिए, मैं भी चली जाऊं। भगवान शिव ने बताया कि तुम, हमें तो निमंत्रण नहीं है, बुलाया नहीं है, तो बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। लेकिन सती तो मान नहीं रही हैं, वो जाना चाह रही हैं, बहुत समझाने पर भी नहीं समझी। तो फिर भगवान शिव ने अपने दो गणों को उनके साथ में भेज दिया कि जाओ सती को लेकर जाओ। अब दाक्षायणी चल पड़ी। ठीक है, और पिता के घर में पहुंचती हैं। क्या होता है आइए देखो। भवानी जब पिता के घर में पहुंचती हैं, तो दक्ष के डर के मारे में कोई स्वागत नहीं करता उनका, क्योंकि भगवान शिव से उनकी कोई पुरानी नाराजगी रही होगी। आप पता करिएगा कि क्यों वो भगवान शिव से रूसे हुए थे और उनको निमंत्रण नहीं दिया था। तो कोई उनसे प्यार से नहीं मिला, एक माता प्यार से मिली, बहनें मुस्कुरा के मिली, लेकिन पिता ने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, है ना। और अपमान, बहुत रुष्ट, बहुत क्रोधित हो गई, बहुत खेद हो रहा है, बहुत विचलित हो गई कि मैंने ये क्या किया, है ना, गलती पे गलती देखा। तो बहुत परेशान है, क्या करें। तो बहुत जो अपमान देखा, सारे देवताओं का भाग था, लेकिन भगवान शिव का तो उस यज्ञ में कोई स्थान ही नहीं था। तो बहुत दुखी हो रही हैं। सुनैना जी बताइए, शिव अपमान न जाय सही, हृदय होई न प्रबोध। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हठी हठकी तब, बोली बचन सद्रोह।
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शंकर जिन निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। शिव जी का अपमान दक्ष नंदिनी से सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। दक्ष कन्या सती बोली, हे सभासदों, हे सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी अवहेलना करता है। मेरा ये शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है, इसलिए शरीर चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग करती हूँ। ऐसा कहकर सती जी ने शव के तुल्य, शव जैसा उनका शरीर रह गया था, उस शरीर को तुरंत त्याग देने का संकल्प किया और ईश्वर से वर मांगा कि प्रत्येक जन्म में भगवान शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे। पार्वती जी ने, सती ने वो शरीर छोड़ा और उनका जन्म हिमवान के घर में जाके मैना और हिमवान के यहाँ शैल पुत्री के रूप में जन्म लिया उन्होंने, और पार्वती कहलाई। पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती। तो अब ये जो है पार्वती कथा प्रारंभ हो रही है। यहाँ से दूसरे कथा के वक्ता, कथा वाला जोड़ा शुरू होएगा। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनानी शुरू कर दी है। अब ये पार्वती का जन्म हुआ है और इसकी कथा में हम कल भगवान शिव पार्वती के विवाह की बात करेंगे। तो आज जरा सा चलते हैं, इस कथा में प्रवेश करते हैं कि पार्वती की जी का जन्म हुआ तो नारद जी आ गए। वो तो पहुंच ही जाते हैं, बढ़िया सी जगह होती है तो भक्ति नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं। तो जब वो हिमवान के घर में पहुंचे तो हिमवान ने बोला कि हंस के उनका स्वागत किया और बोला कि तुम्हारी की ऋषि को बोला कि इसकी जरा गुण दोष बताओ, इसका जन्म पत्री वांचो जरा, है ना, इसके जन्म लग्न देख के बताओ कि ये कन्या कैसे रहेगी, कैसी है। तो बड़ी सुंदर ये नारद जी की भविष्यवाणी है। तो एक बारी पहले हम गा के और फिर इसके अर्थ की बात करेंगे। सुनैना जी। पार्वती जन्म पर नारद जी द्वारा भविष्यवाणी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई पियारी। सदा अचल कर वाता, एहि तेज सुपे हई पितु माता। कोई पूज सकल जग माई, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन,
नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिलई, परिहस्त असी रेख सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो नारद जी ने बोला कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या तो बड़ी सुलक्षणी है, पर दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। तुम्हारी सर्वगुण संपन्न कन्या का पति गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नग्न और अमंगल वेश वाला होगा। इसके हाथ में तो ऐसी ही रेखा पड़ी है। देवऋषि की वाणी ने सुना तो माता पिता सोचो कि क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हुआ और आगे क्या हुआ। अब हम इसकी बात तो कल करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी कथा यहीं तक है। अब हमारे कुछ जिज्ञासा, समाधान, प्रश्न बीज, इसकी बात करते हैं और फिर 5-7 मिनट आपके फीडबैक रहेगा। तो जिज्ञासा समाधान में हमें ये देखना है कि क्या आजकल भी प्रयागराज में कोई ऐसा दीर्घ अवधि का उत्सव मेला लगता है। अगस्त्य ऋषि कौन थे, उनके बारे में, उनसे जुड़ी कथाओं को जाने। इसका एक मैं क्लू देती हूँ आपको। भगवान राम के जो गुरु वशिष्ठ जी थे, उनके भाई थे अगस्त्य ऋषि। कुंभज हैं दोनों भाई, कुंभज कहा जाता था। तो इनके बारे में जानिएगा। भगवान के कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि, अगस्त्य ऋषि से उनका क्या संबंध था, अरे मैंने बता दिया। शास्त्र प्रमाण के अनुसार उनका अगस्त्य आश्रम भारत के किस भाग, किस दिशा में होगा। भगवान शिव ऋषि अगस्त्य से संभवतः कहाँ मिले होंगे, है ना। जो जब बताया था कि भगवान राम सीते सीते कह के जा रहे थे, तो आगे की कथा सुनकर अनुमान लगाएं और भारत के मानचित्र पर वो स्थान खोजें। दंडकारण्य कहाँ पर है, आजकल उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, और प्राचीन काल गणना के अनुसार पर जानकारी एकत्र करें। चतुर्युग, कौन कौन से युग आते हैं। जब का ना त्रेता युग में भगवान राम थे, दशरथ कुमार बने थे, तो इसका मतलब चतुर्युग में से ये एक है। तो कौन कौन से युग हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, त्रेता युग कौन से नंबर का युग था, है ना, इसके बारे में जानकारी। और प्राचीन भारतीय काल गणना कैसे होती थी, निमिष निमिष, निमिष से कल्प तक की इकाइयों को जाने। जैसे जैसे कि जैसे हम कहते हैं सेकंड, मिनट, फिर घंटे, फिर दिन, फिर ऐसे। तो ऐसे निमिष से लेकर कल्प तक की इकाई को जानेंगे ऑडियंस प्लीज। और दशावतार, भगवान राम, विष्णु का भगवान राम कौन सा जन्म है। दशावतार के बारे में सुना होगा, 10 अवतार। तो राम जी कौन से नंबर के अवतार में आते हैं त्रेता युग में, तो इसका क्रम पता करना है। और अंतः कथा ये है, आपको पता करना है कि शिव गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। जैसे ही सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया, तो भगवान शिव के गण ने वो तबाही मचाई वहां पर, उस यज्ञ को विध्वंस कर डाला। और जैसे ही भगवान शिव को पता चला, तो उन्होंने माँ सती की देह को उठाया और इस तरह से पूरा ऐसा तांडव किया, ऐसा रौद्र रूप धारण किया। और जो, तो वो तांडव का क्या अर्थ है और तांडव के कितने प्रकार हैं, ये भी जानेंगे। और फिर हमारे क्या इन जो उस तांडव का हमारे शक्तिपीठों से कोई लिंक है क्या, हमारे शक्तिपीठ कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं भारत में, और सती कथा से उन शक्तिपीठों का क्या संबंध है। तो ये आप बताइएगा जरूर, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सीधी सती कथा जो है वो हमारी शक्तिपीठों से जुड़ी हुई है, तो ये बताएंगे। और भारतीय संस्कृति में भगवान राम और राम कथा आप क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ किस किस रूप में आपको राम तत्व, राम शब्द, राम कथा दिखाई, सुनाई, महसूस होती है, ये आप बताएंगे। तो सॉरी, और ये एक चार्ट है
ये हर कांड में कितने दोहा चौपाई सोठ हैं, अब ये आगे के आप बताएंगे। मैंने बालकांड का बताया, ठीक है। चलिए अब आपकी बारी है फीडबैक। सुनैना जी, आप पैनलिस्ट बना के बताइए कोई जो बोलना चाह रहे हैं। हिमांशी जी, Himanshi ji raised their hand. Sunana ji, you can promote the panelist and allow her to talk. राम राम मैम। राम राम राम। तो आपने वो पूछा था ना कुछ टाइम पहले कि प्रजापति दक्ष शिव जी से क्यों नाराज थे, तो उसका मतलब मेरे पास एक स्टोरी है। तो मतलब जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से कि जो प्रजापति दक्ष के पिताजी थे ब्रह्मा जी, क्योंकि शिव जी की वजह से उनकी पूजा नहीं होती है, इस वजह से वो उनसे नाराज रहते हैं। क्योंकि जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी में मतलब एक बार वो हुआ था कि हम में से सबसे मतलब ऊपर कौन है, तो तब शिव जी प्रकट हुए थे एक शिवलिंग के रूप में, और तब उन्होंने कहा था कि जो सबसे पहले इसका आखिरी छोर पता करेगा तो वो सबसे बड़ा होगा। तो उसमें ऐसा था कि ब्रह्मा जी ने उस टाइम पे झूठ बोला कि मेरे को पता लग गया है, पर विष्णु जी काफी टाइम तक नहीं, जैसे उनको पता लगा, तो तब शिव जी ने उन्हें ये श्राप दिया था कि आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो इस वजह से दक्ष जो थे वो शिव जी से नाराज थे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वाह। थैंक यू मैम। और कथा आपको कैसा चल रहा है? आपके सुझाव बहुत जरूरी है हमारे लिए आगे की नीति निर्धारण करने के लिए। मैम कथा अभी मतलब मैं ये पहली बार ये पढ़ रही हूँ, मतलब मेरा बहुत टाइम से मन था, मैंने आपका हनुमान चालीसा वाला सेशन भी अटेंड किया था, तब से मेरा मन था कि मैं ये पढ़ूं, पर मतलब मतलब थोड़ा जैसे कि लिखी गई है, मतलब मुझे इतनी ज्यादा हिंदी अच्छे से पढ़नी नहीं आती है, तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाई उसे। तो अभी जैसे आप अभी सिखा रहे हो, तो आई एम होपिंग दैट मैं इसको मतलब अच्छा रहेगा। रोज थोड़ा पढ़ना शुरू करूं और इसको पढ़ पाऊं। जी बहुत ही सुंदर कहा इन्होंने कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के ना अभ्यास हो जाएगा, और जो बिल्कुल। चुनी हुई चौपाइयां हैं उन्हीं से शुरू करिए, उसी से आनंद ये आएगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगता है मैम जब आप दोनों आप समझा रहे होते हो, आप पढ़ते हो। आपका जो हनुमान चालीसा वाला वो था वाचन था, वो मैं अभी तक मैं हर रोज वही सुनती हूँ, मुझे और कोई सुनना अब अच्छा भी नहीं लगता। मैंने उसी की रिकॉर्डिंग करके अपने फोन में रखी है, और मैं उसी को हर रोज मतलब सुबह जैसे गाते हैं तो मैं उसको चला के ही पाठ करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, गोपाल जी हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं गोपाल कृष्णा हूँ। हाँ मेरा जी। गुरुजी चिन्मया मिशन का विशाखापट्टनम का इंचार्ज था, वो हाँ जी। वही उनको ये रामचरितमानस में इंट्रोड्यूस किया है, और हम बहुत इसमें बहुत ज्ञान नहीं दे पाया, क्योंकि वो उसका मृत्यु हो गया है कोविड में बहुत जल्दी। तो उस समय से मैं सोच रहा हूँ किसी को पकड़ना, किसी को गुरु को पकड़ना। तो अवधि में रामचरितमानस सीखने का इच्छा था। तो बहुत बहुत प्रणाम है आपको, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, और ये कंटिन्यू करूँगा मैं। धन्यवाद। रमा जी। रमा जी। हाँ नमस्ते, मैं टोरंटो कनाडा से बोल रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब छोटे थे बहुत कॉन्वेंट वगैरह में पढ़ के वी वर नॉट फेमिलियर। हाँ अभी सुनाई दे रहा है? जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बहुत खुशी हो रही है कि इस एज में ऐसा मेरे भी बहुत दिन से बहुत वर्षों से था कि रामचरितमानस
से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिला है। आई थिंक जस्ट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वन, थोड़ा जब आप उमा जी आप पढ़ रही थी तो साथ साथ में वो रिटन वो दिखाई नहीं दे रहा था, ओनली फॉर द फर्स्ट फ्यू वर्सेस, उसके बाद से दिख रहा था, तो इट मेक्स इट इजी जब आप गा रही होती हैं, और जब तब हम लोग भी उसको पढ़ के वी कैन relate to that. लेकिन thank you very much for giving us the opportunity to learn and study Ramcharitmanas. थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि इतने रामचरितमानस के लिए श्रद्धालु लोग हैं। हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। Thank you, Ramaji. Sandhya ji, I'm unmuting you. नमस्ते। नमस्ते। राम राम। ये भी मेरे लिए भी एक नया अपॉर्चुनिटी है, और सुनने में तो मैंने सिर्फ सुना है तुलसीदास के बारे में, मगर कभी इनके रामचरितमानस के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो अब लग रहा है कि सुनने में बहुत सुंदर लग रहा है, और मधुर भी आवाज है। मतलब चलो, मुझे भी एक आशा हो रही है सीख सकूंगी करके। धन्यवाद। थैंक यू। तो सुनैना जी, और कोई हैं तो सुनीता जी, 1 मिनट, एक है सुनीता जी भी। I'll just- नमस्ते, मैं सुनीता बोल रही हूँ। ये देख के और ये प्रोग्राम सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये रामचरितमानस मैंने स्टार्ट करना चाहती थी पढ़ने के लिए, पर अवधी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मगर अब मैं जुड़ना चाहूंगी इसके साथ। और राम जी तो मेरे को बहुत ही पसंद है, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस युग में इस तरह से जीना और इस तरह से रहना कितना डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल हम अपनी तरह से इसको उतारने की कोशिश करते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, और मैं इससे जुड़ के रहना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सुनैना जी। जी, एक वर्षा जी के कुछ कहना चाहती हैं, मैं ओके। हाँ जी। हेलो, जी, नमस्कार। बहुत नमस्ते। बहुत बहुत आनंद आया। और वो जो हनुमान चालीसा का बोला, वो उसका कुछ रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ जी, वो व्योमा में है वो पूरा प्रोग्राम। यू कैन रजिस्टर और आप ले सकते हैं वो प्रोग्राम। हाँ, इससे पहले हुआ था, तो वो अच्छा, व्योमा से मिल जाएगा। उसमें रजिस्टर करिए, उनके प्रोग्राम्स में भी दिखता है, और रजिस्टर हो जाए, सब मिलेगा अच्छा, उसका। रजिस्टर करने के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगा? 6 क्लासेस हैं। ओके, व्हाट्सएप में नहीं मिल सकता? वो उनसे पूछ के बता देंगे, नागाश्री जी से। तो वैसे यूट्यूब पे हैं सारे लेक्चर्स। ओके, हाँ अगर उसका कुछ लिंक नाम वगैरह मिल जाए यूट्यूब हाँ में जी, हाँ जी, तो ये हाँ। कल बता हाँ देते हैं आपको, उससे हाँ, पूछ के। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक हाँ, यू। जय। ठीक है, चलिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम। थैंक यू, आभार, धन्यवाद। हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं शिव पार्वती विवाह में। आइएगा। प्रणाम। प्रणाम मैम, धन्यवाद।